Hi guys, welcome to MB Pathshala YouTube channel. This is Vijay. In this particular session, we'll be talking everything about the decision making section of that, how it is different from the verbal ability section to start with, and what are the core skills actually required to crack the DM section, what are the cutoffs of the DM section, right? And everything you need to know, how we actually plan to go with the sessions, what we'll be doing in the next 1 month, everything will be covering this particular video. So let me start by introducing myself. So I'm Vijay. I have been an engineer by education, right? So I've been a cat mentor for the past 7 years. Since 2016 I've been teaching. I have been associated with multiple brands. I started with Time Dehradun to begin with. Then I moved on to IMS Lucknow, IMS Mumbai, IMS Pragraj, right? You might also, some of you might also know me from that LRDI practice series, 100 practice sets on IMS Pragraj channel. I also did, not completely did, I also went to do my MBA from FMS Delhi. I dropped out from FMS from the 1820 batch because there was too much love for teaching. Right, I was teaching earlier also. Right, I started from 2016, but then in 2018 I finally thought about doing an MBA. I wanted to crack that exam because we couldn't crack ITJ. That is the most obvious reason for me when I look back at it. So I dropped out, and I have been continuing with my role, teaching, mentoring student for CAT. This is a full time role, and I've been enjoying too much to do an MBA. So that was the reason I dropped out. I have a multiple 98.5, 98.6 plus in CAT and ZAT both exams. I love taking tests. uh, I have been the chief mentor for Quant LRDI decision making, right? So these are the core areas I actually deal with. Other areas I get involved in SOP profile building and the entire VAT PI preparation, right? So that is all about myself. Now, let's start. This is also the basic layout you're actually continuing with, right? So you would have had multiple sessions on QA, like DI sessions, VA sessions. So this is the first session on decision making section of CAT. So थोड़ा हम इंट्रोडक्शन मोड में ही रहेंगे. विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेक्शन ऑल अबाउट. क्या इसमें बेसिकली आपको कोर स्किल चाहिए एज अ एस्पिरेंट, and how should you actually go about this particular section, right? And we'll be taking a few examples to understand the theme of LRD, sorry, the theme of decision making section. And in the follow up videos, we'll be taking more sessions on DM sections. We'll be doing more problem solving, but this is just an introductory session. But this is very important. We'll be talking about the section as a in a holistic manner in this particular video, right? So this is the basic layout for the first 15 or 16 days of December. We'll be continuing with this particular series as well. This is a CAT 24 Eklavya batch announcement, right? Do make sure you check out this particular batch. Now, let's start by understanding what this section is all about and everything you need to know about this section. Now, yeah, DM section basically hai kya? Now, if I have to literally tell you what this section is all about, I would literally say this is the most tedious section, like the most hard working section with respect to any section in these all MBA entrance examination, be it verbal ability section, be it quant, be it LRDI. This is a tedious section. Now, why is this a tedious section? Why this becomes a little difficult for all the MBA aspirants? The first and foremost thing I would say, the main reason why this section becomes a little difficult, because of the low time, right? Of the low time we actually get to prepare for the section. Now hota kya hai, पूरे साल भर we prepare for CAT, right? And when we prepare for CAT, we only prepare for the three sections: QA, LRDI, and mobility section. So we don't really prepare for this section throughout this year, right? We only get a grasp of this particular section. We get only a hold of this particular section when we rat कैट के बाद ही इस पूरे सेक्शन का अपने को सबको ध्यान आता है, ठीक है? एंड ये पूरा टाइम हम सिर्फ दिसंबर में ही हम जितना भी इसको डिवोट कर पाते हैं उतना ही करते हैं. ऑल्सो आई वुड से from my experience, what aspirants actually think about this particular section is, उसको इसको ये प्रेयर कैसे करते हैं? What they do is write 5 to 6 mocks,
इसके अलावा 3-4 उन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए डिसीजन मेकिंग सेक्शन के, एंड बेसिकली दे थिंक दैट 22 क्वेश्चंस और लेट्स से 7 है, तो 22 इंटू 7 जितने भी आपके सेट्स बनते हैं 22 इंटू 7 140 154 अप्रॉक्सीमेटली, तो 154 क्वेश्चंस, सेट्स तो और कम होंगे बिकॉज ईच सेट हैज मल्टीपल क्वेश्चंस इन इट, अप्रॉक्सीमेटली 223 right? So maybe 60 70 or maybe or less 50 to 60 like sets, they do it and they believe in the fact that they'll be able to do the section just by like doing all these 5 mocks and maybe 2-3 previous years. यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, like this is a like big section, this is a very like difficult section on multiple fronts in itself. तो अगर ये सेक्शन डिफिकल्ट है एंड इट हैज 22 क्वेश्चंस आल्सो, राइट, इट हैज 22 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 22, इट कुड चेंज बट जनरल आइडिया इज ऑफ 22 क्वेश्चंस. If it has 22 questions, you should be preparing for this section more. That is the whole point behind them, right? So even though we have only a month for that after CAT for me, right? But even then in those like 30 days 31 days जो भी आपको टाइम मिल रहा है, जितना भी आपके पास टाइम बचा है, उसमें आपको ना इसको इनफ टाइम डिवोट करना पड़ेगा टू क्रैक दिस सेक्शन. ये कम टाइम देके आप उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, मे बी लाइक इट क्लिक्स टू यू, लाइक बट ऑन एन एवरेज, लाइक अगर मैं किसी भी रैंडम स्टूडेंट को उठा के लाइक उसको दो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन, he'll be able to do it. इसमें आपको रीडिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लाइक सेट आएगा, बट लाइक इट इज़ डिफिकल्ट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स. विल बी टेकिंग अ लुक एट इट, बट इसको आपको प्रिपेयर करने के लिए इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, ढेर सारे आपके सेट्स लगाने पड़ेंगे, देन यू विल लाइक डेवलप अ ग्रास्प ऑफ हाउ दिस सेक्शन लाइक लुक्स लाइक, एंड इसको कैसे आपको डील करना है, राइट. सो द फर्स्ट रीजन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज व्हाई दिस सेक्शन इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट सेक्शन और बेसिकली a nemesis for a lot many ZAT aspirants. It is because of the low time that you have, right? Low time to prepare. Now, the next reason why people don't really like this section is this is little like verbability. Why this is like a little like verbability? Because this would involve a lot of reading, right? जैसे अभी आपको reading, for example, if a student doesn't really like reading, right? जैसे कैट में क्या होता है, कैट में फॉर एग्जाम्पल आप रीडिंग के पर्सपेक्टिव से सिर्फ आप किस चीज़ को देखते हो, वर्बलिबिलिटी के सेक्शन को देखते हो. क्वांट एंड एलआरडीज आर लिटिल ऑफ द मैथमेटिकल नेचर, राइट. तो 66% ऑफ द पेपर इज अराउंड द कोर स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, राइट. यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेपर में जैट का जो पेपर है ना, इट इज़ लाइक अ लिटिल मोर फोकस टूवर्ड्स रीडिंग, राइट. चाहे वो वर्बलिबिलिटी का सेक्शन हो जिसमें आपके जो आरसी के पैसेजेस आते हैं, इवन दो दे आर वेरी शॉर्ट, लाइक 2 से 3 पैराग्राफ में ख़त्म भी हो जाएगा, बट दे आर वेरी फिलोसफिकल इन नेचर, राइट. दे हैव दोज एनालिटिकल लाइक बेंड्स, आपको क्रिटिकली बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मे बी पोइट्री भी आपको मिल सकती है. सो इट इज़ फोकस्ड अ लॉट ऑन रीडिंग, राइट. उसी तरीके से जो आपका डिसीजन मेकिंग का सेक्शन है, इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रीडिंग, बिकॉज इसमें ना आप ज़रा सा भी अगर मिस किए, कुछ भी चीज़ें मिस करें, तो आप कुछ ना कुछ पैरामीटर स्किप कर जाओगे. एंड अगर वो पैरामीटर, अगर वो कंडीशन कुछ भी मिस हुआ, तो मे बी किसी स्टेक होल्डर का आपका भी, वोट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट अ स्टेक होल्डर इज, बट किसी भी स्टेक होल्डर का आपका पूरा स्टैंस चेंज हो सकता है. तो इसमें आपको ना बहुत फोकस रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसीलिए ये सेक्शन थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट भी है, बिकॉज इसमें रीडिंग इन्वॉल्व है. एंड द थर्ड रीजन, लाइक वो रीडिंग का ही कंक्लूजन हो जाएगा, जैसे कि वर्बल में होता है वैसे यहाँ पे द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट. द प्रॉब्लम्स विल हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. हर साल क्या होता है, हर साल यही होता है, जैट का पेपर आया, आंसर कीज बनी, फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल आंसर कीज आई है जो भी आई, फिर उसमें कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ पे लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन. लाइक बहुत बार तो लाइक व्हेन वी प्रिपेयरिंग, सीधे सीधे मेल भी होता था, दे गिव द रिस्पॉन्स कि नहीं नहीं ये इस रीज़न से सही होगा, जैट अथॉरिटीज ऑफिशियल रिस्पॉन्स आता था, नहीं ये इस रीज़न से सही होगा या इस रीज़न से गलत होगा. सो देयर इज अ बिट ऑफ सब्जेक्टिविटी, right. So these are the 3 reasons I would say ki why this particular section is actually a like bit difficult, I would say, to prepare, right. And moving on, there is something more you need to know about this particular section. Now a lot of times we compare this with LR मतलब जैसे लॉजिकल रीजनिंग होता है, इट इज लिटिल लाइक वर्बल रीजनिंग, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे देखो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस बेसिकली क्या है, LRDI की जगह ये है ना, जैसे कैट में LRDA होता है तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है. LRDA में क्या होता है ना, आप
कैसे कोई सेट चूज करते हो, राइट? तो वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू चूज द सेट्स, द डीएम सेट्स, कौन से सेट्स आपको एग्जाम में करने होते हैं, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन एक्चुअली डू दैट. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज द पैरेलल बिटवीन एलआरडीए एंड डिसीजन मेकिंग. देखो एलआरडीए में क्या होता है, यू रीड द सेट ओनली, राइट? आप पूरा सेट पढ़ते हो, आप सेट के कंडीशंस पढ़ते हो, देन यू एनालाइज इज इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन, किसी टेम्पलेट से क्या ये मैच करता है या नहीं करता है, राइट? अगर उस टेम्पलेट से मैच करता है तो यू स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. आप जैसे रीड करते हो यू गेट द कंडीशंस इन प्लेस, कंडीशन लगनी स्टार्ट हो जाती है, अच्छा देन यू रियलाइज हाँ कहीं ना कहीं इसको हम फिट कर सकते हैं जो भी आपका डेटा दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस वी हैव डन ऑलरेडी, तो वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट सेट, एंड दैट इज हाउ यू बेसिकली लाइक पिक अप दोस एलआरडीए सेट्स. नाउ डिसीजन मेकिंग सेक्शन का एक क्रूशियल एस्पेक्ट ये बन जाता है कि आप सिर्फ ना इनिशियल इंफॉर्मेशन पढ़ के कभी भी नहीं डिसाइड कर पाओगे वेदर यू आर एक्चुअली गोइंग टू अटेम्प्ट दैट प्रॉब्लम. डिसीजन मेकिंग सेक्शन में मेरी बात याद रखना बिल्कुल, इसमें आप तब तक नहीं डिसाइड कर पाओगे whether you have to actually attempt that particular problem or not, जब तक आप पूरा कंडीशंस, पूरा स्टेटमेंट जितना भी दिया हुआ है, पूरा पैराग्राफ या जो भी जैसे भी इंफॉर्मेशन दिया है, जब तक आप वो नहीं पढ़ लेते, जब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते, क्वेश्चन स्टेम नहीं पढ़ लेते, एंड जब तक आप उसके आंसर ऑप्शंस नहीं पढ़ लेते, आप पांचों ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ लोगे, एट दैट लास्ट पॉइंट जब आप फिफ्थ ऑप्शन पढ़ लोगे, मे बी अब ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करोगे, only then you will be able to actually figure out whether you are actually going to do this particular set or not, right? So LRDI और इसमें ये डिफरेंस है, you cannot leave that. आप कभी भी ना, जैसे LRDI जब करना, सॉरी जब DM का सेक्शन करना स्टार्ट करोगे तो you'll realize this statement is very easy. तभी DM के सेक्शन में ना हर साल क्या होता है, हर साल मैक्सिमम लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ उस पर्टिकुलर सेक्शन में है नहीं जो आप बोलोगे नहीं नहीं ये मेरे को आता नहीं है. it has those conditions like business scenarios है, ethical scenarios है, बस वो scenarios ही तो हैं. तो उस scenarios में every person will be able to take a particular decision, no matter whatsoever decision is taking, right or wrong, but they'll be able to take a decision. वो सही गलत वो तो examiner obviously decide करता है, ठीक है? इसीलिए just because of these statements never like go about attempting a set. आप पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, आप ऑप्शंस पढ़ोगे, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर दिस इज एन इजी प्रॉब्लम, दिस इज अ मॉडरेट प्रॉब्लम, और दिस इज एक्चुअली वन ऑफ दोस व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, राइट? एंड दिस विल like be very relevant if you have to increase your accuracy. इजी वाला सेट ना ऑलमोस्ट हर कोई कर लेगा पढ़ने का, बट जो डिफिकल्ट वाला होता है उसमें आपको ये पूरा एज अ कोहेसिव नेचर की तरीके से पूरे प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा. यू हैव टू डिफाइन योर स्टेक होल्डर, यू हैव टू डिफाइन द कंडीशन, and you have to decide maximum benefit for all the maximum stakeholders. So this is how the decision making of the decision making section actually goes about, right? कि कैसे डिसाइड करना होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को. सो प्लीज कीप दिस इन लाइन. नाउ जैसे कि LRDA में फॉर एग्जांपल होता है, देयर आर लाइक कैटेगरीज पर से, कैटेगरीज एज इन बेसिकली दिस इज अ लीनियर अरेंजमेंट सेट, दिस इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट सेट, या ये पजल है, या फिर फॉर एग्जांपल DM में दिस इज वेन डायग्राम. आप कैटेगराइज कर लेते हो. तो देखो DM सेक्शन में बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन पॉसिबल नहीं है, बट if we are actually talking about some categories, so I would say broadly 3 categories में आपके DM के सेक्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं. The first category I would say these are all the number based. ठीक है, नंबर बेस्ड, बेसिकली रेवेन्यू बेस्ड आपको मैक्सिमाइज करना होगा, या जो भी आपको बिजनेस डिसीजन लेने पड़े होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नंबर्स. दिस इज वन टाइप ऑफ DM प्रॉब्लम्स व्हिच हैव अकर्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. देन कम्स आपके स्ट्रैटेजी वाले, राइट? अगेन बिजनेस रिलेटेड ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होगा. यू हैव टू डिवाइस सर्टेन स्ट्रैटेजीज कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से, प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से आपका क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट. सो दैट इज स्ट्रैटेजी बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स. And finally, the most important and the most frequent, you'll be always getting this, is those HR based problems. HR based. अब ये HR based भी बोल सकते हो आप, इसी में बेसिकली एथिक्स बेस्ड भी बोल सकते हो.
right? So all those ethics based problem. So this is the broad category. इसके अलावा भी there are multiple categories. अब इसमें ऐसा है ना, देखो इसमें ये भी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हर प्रॉब्लम नया होता है. एवरी प्रॉब्लम हैज अ न्यू एंगल टू इट, बिकॉज दिस हैज दैट सब्जेक्टिव नेचर. जैसे कभी भी आपको बहुत ज्यादा इसमें कभी एग्जैक्ट सेम इक्विवेलेंस नहीं देखेगा किसी पास्ट प्रॉब्लम से. जैसे अगर एथिक्स बेस्ड प्रॉब्लम ही है, थोड़ा बहुत सिचुएशन सेम हो सकता है, बट कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसी हो सकती है विच एक्चुअली चेंजेस ऑल द डायनेमिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में एवरी प्रॉब्लम इज यूनिक इन इटसेल्फ. प्लीज कीप दिस इन माइंड. इसमें यूनिकनेस काफी रहती है आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में. ठीक है. सो दिस इज हाउ द डिसीजन मेकिंग सेक्शन एक्चुअली होल्ड्स. दीज आर द 3 कैटेगरीज. हम जो आने वाले हमारे सेशंस हैं उसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले आई गिव यू लाइक 1 1 2 2 3 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज कैटेगरीज. उसके बाद देन विल मूव इन अ जनरल फ्लो. उसके बाद हम रोज प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, राइट? सो आपको अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, एक जनरल आइडिया डाल लेना है दिमाग में कि किस किस टाइप के आपके डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम्स बनते हैं. इनको हम इन डेप्थ डील करना स्टार्ट करेंगे इन स्पेसिफिक वीडियो. स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व देम इन स्पेसिफिक videos, right? Please keep this in mind. Now the next part what I'm actually trying to explain here is how much you actually need to score in this particular section. Now decision making section score versus percentile का एक basic layout है. This is not very fixed, right? अब 9 marks पे 85 percentile, this is not fixed. ठीक है, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे वेरी कर सकता है. 0.5 मार्क्स नीचे भी जा सकता है, मे बी 0.5 मार्क्स ऊपर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर. बहुत ज़्यादा वेरिएशन ओवर ईयर्स जैसे नहीं आता है. अप्रॉक्सीमेटली आपकी कट ऑफ 90 परसेंटाइल के अराउंड होती है. सो अ गुड स्कोर, लाइक अ गुड स्कोर वुड बी लाइक अबव 9-10. ठीक है, टू बी सेफ फॉर ऑल दोज कॉल्स आपको इतना तो एटलीस्ट लाना पड़ेगा. ऑब्वियसली इफ यू आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल तो अराउंड 14-15 जितना भी आप लेके आओगे. एंड नाउ आई से दिस लाइक गेटिंग 14 इज लाइक वेरी गुड बिकॉज यू ओनली हैव 22 क्वेश्चंस टू स्कोर फ्रॉम, राइट? तो 22 क्वेश्चंस में से 14 विल गेट यू अराउंड दैट 99 परसेंटाइल मार्क. आप जितना ऑब्वियसली लेके आओगे उतना अच्छा है, राइट? अटेम्प्ट करने में कभी भी इसमें कमी नहीं रहती है. आई टेल यू अगेन दैट, राइट? अटेम्प्ट बहुत होते हैं इसमें बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ईजिली किसी प्रॉब्लम को छोड़ नहीं पाओगे. तो सिचुएशन ही तो है, उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो हम अपना लॉजिक लगा ही देंगे. ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सॉल्व करके नहीं लेके आना होता है. द मेजर चैलेंज इज लाइक आप कैसे उसको अप्रोच करते हो. एंड वन वेरी सिंपल आइडिया आई वुड से टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे आप सॉल्विंग के टाइम पे आप इसको डेप्थ में देखोगे जब हम वीडियोस कर रहे होंगे, इसमें भी एलिमिनेशन के थ्रू आप जितना जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेटर पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. नेवर एवर गो अबाउट लाइक सेलेक्टिंग द राइट आंसर बिकॉज दिस हैज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव टू इट. जैसे कि आरसी में क्या होता है, बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें भी ना आपको और ज़्यादा क्लोज ऑप्शन मिलेगा. इसमें आपको लगेगा अरे ये भी तो सही है, ये भी तो सही है. तो इफ यू गो अहेड विद दैट सेट विद दैट टेम्परामेंट कि भाई आंसर ढूंढना है मेरे को, आई हैव टू लाइक सेलेक्ट द राइट आंसर, तो आपको ना कोई इनकरेक्ट आंसर देखने में ऐसा लगेगा ऑन द फर्स्ट हैंड. अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ रहे हो सकता है पहले ही ऑप्शन आपको ऐसा, हाँ ये सही तो है, बढ़िया तो है, लाइक सेटिस्फाई कर देगा मेरा. बट द होल प्रॉब्लम इज द लाइक इट माइट सेटिस्फाई अ फ्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स, बट वो पूरे लाइक सिचुएशन को, पूरे स्टेक होल्डर्स को या मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा. इट माइट एक्चुअली इग्नोर 1 or 2 पैरामीटर्स जो कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सेट, राइट? सो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज फाइनली कि डोंट जस्ट फोकस ऑन the part where you select the right answer. Like go about eliminating all the options one by one. यहाँ पे 5 ऑप्शन है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको एलिमिनेशन 4 का करना पड़ सकता है. एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर, राइट? So let's just quickly like take a look in this particular video at one of the sets. क्या होता है बेसिकली डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम, राइट? हम बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स की बात नहीं करने वाले हैं. वी जस्ट वॉन्ट टू टेक अ लुक एट पर्टिकुलर सेट. इसके 1-2 प्रॉब्लम्स जल्दी से करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा एक फ्लेवर मिल जाएगा व्हाट इज दिस डिसीजन मेकिंग सेक्शन. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ने में ये आसान होता है, क्यों उसमें ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है. एक ही पर्टिकुलर सेट में, जैसे एलआरडी में भी होता है ना बहुत बार, इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत मिलेगा. एक ही पर्टिकुलर सेट में हो सकता है आपका देयर इज वन क्वेश्चन विच इज वेरी इजी, वन क्वेश्चन विच इज मीडियम, थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगने का पार्ट स्टार्ट हो गया, एंड वन क्वेश्चन विच इज डिफिकल्ट.
एक बड़ा कठिन सा है, उसमें हम 2-3 कुछ ऑप्शंस में फंस रखे हैं, 2 भी नहीं, 2-3 ऑप्शन में फंस रखे हैं, देयर कैन बी चांसेस। तो उस टाइम पे यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू हैव टू एक्चुअली गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और नॉट। 3 क्वेश्चन आए, उसमें से 2 करेक्ट छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, परफेक्टली फाइन है। एक्यूरेसी पे फोकस करके वी कैन गेट 14 मार्क्स, राइट? Now let's just quickly read this. Why this is very interesting also because of all those situations. पूरी कहानियाँ होती हैं इसमें, एक gossips होते हैं इसमें, and like good to read. Let's read this. So Mr. Dipanshu Barua, a young IT professional, came early to office to assist his boss in the preparation for an important client preparation. ठीक है, तो Mr. Barua is an IT professional. अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं है, की पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं मिले मेरे को. When he switched on his computer, he saw an email from Mr. Patel. The email was as follows. There is an email on his computer. Now let's read that email, right? Okay, so now we are intruding in his email. So, dear Mr. Barua, this email serves as a follow-up my conversation with you on December 1st, 2014. I have already conveyed the need for improvement. Oh, now, we have to be very careful, right? So, something is happening. I have already conveyed the need for improvement in your behavior as desired by a project leader and colleagues. I have already conveyed that you need to improve. और ये इंप्रूवमेंट के लिए कौन बोल रहा है मेरे को? प्रोजेक्ट लीडर एंड माई टीममेट्स, कलीग्स. ठीक है, तो आई एम अ पार्ट ऑफ अ टीम दिस इज नॉट वेरी हैप्पी विथ मी. वो चाहते हैं कि आई नीड टू इम्प्रूव माई बिहेवियर, एंड उसके लिए आपका लाइक मिस्टर पटेल ने उसको ईमेल करा हुआ है. दिस इज अ फॉलो अप ऑन दैट. Now they are yet to notice any visible improvement, so they're like unhappy. कुछ भी जो चाहते हैं, कुछ भी improvement हो, they are not seeing any improvements, right? This is a complaint of sorts. ठीक है, I'm apprehensive that a failure to act may warrant further action leading to dismissal, right? So this is a sort of warning also, right? Now understanding, like this is a warning. भाई तुमसे बोला गया कि तुम क्या करो, improvement करो, तुम्हारे teammates खुश नहीं है तुम्हारे काम से, like तुम्हारा environment, तुम्हारा behavior, they are not happy with that. तो क्या करना है तुम्हें? अगर तुमने ये सही नहीं करा तो अब बात इतनी बढ़ जाएगी, we can actually dismiss you, right? It can warrant further action leading to dismissal. I will continue to monitor and assess your performance over the next 3 months to determine whether improvement meet the expectation. So 3 months का तुम्हारे पास time है, right? You have 3 months to improve. We'll be monitoring you and we'll decide whether improvements meet the expectation. Like this is a very fancy line, improvement meet the expectations. तो जितना हम expect कर रहे हैं, अगर तुमने उतना improve करा तो सही है, नहीं तो फिर हम निकाल देंगे. ठीक है. At the same time, I would like to reaffirm that you are very valuable for our organization. So this is a very good line to end with. पहले पूरा हमने like बोल दिया भाई देख लो अपना, सही improvement नहीं करी तो हम निकाल देंगे. But last में what we are saying is you are a very valuable employee to our organization. Right, so that is how we officially finish our mails. So best wishes, Mr. A. Patel, the HR director. So who is like A. Patel, the HR director? अभी देखो ऐसा है, अभी फोकस बहुत ज़्यादा हम सॉल्व करने में नहीं करेंगे, अभी पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस को. बट द होल पॉइंट इज, जब आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, एनी पर्सन वुड से कि हाँ ये तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको आप देख के बोलोगे ना ये बहुत डिफिकल्ट सा कुछ था. नहीं, बहुत एक सिंपल सा सिनेरियो है, इजी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, राइट? देयर इज नो फिलोसफी इन दिस. इजी सी लैंग्वेज है, एक सिंपल सा ईमेल है जिसमें आपको समझ में आ गया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. ठीक है, नाउ द कॉन्टेक्स्ट विल रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स रीड फर्दर. क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? इनिशियली द ईमेल डिस्ट्रैक्टेड मिस्टर दीपांशु ऑब्वियसली, but he's decided to focus on the job. Which of the following options might best explain his decision to do so? Right? So question पढ़ रहे हो ना, which of the following options might best explain? So maybe दो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है, हाँ थोड़ा एक लॉजिकल रीजन बन सकता है. दिस ऑप्शन माइट एक्सप्लेन हिज रीजन टू फोकस ऑन हिज जॉब, बट वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट like decision, right? Best option which might explain his decision to do so. Right? Now आपको ना लाइक एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ. विल बी फोकसिंग मोर ऑन अदर वीडियोस जब हम लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजीज होती है. मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ. इसमें ना आपको क्या देखना है बेसिकली, विल रीड द ऑप्शंस इन अ व्हाइल. आपको मेन ना पहले सिचुएशन एनालिसिस करनी पड़ेगी. मतलब वो करंट सिचुएशन है क्या, व्हाट इज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा इतना है, जैसे इफ आई हैव टू समराइज दिस, कॉन्टेक्स्ट इतना सा है कि
देर इज दिस दीपांशु बरुआ, IT प्रोफेशनल, उसके टीममेट्स उससे खुश नहीं है, देर अनहैप्पी विद हिम। तो उसके अगेंस्ट जो HR डायरेक्टर है मिस्टर A पटेल, उसने उसको एक फॉर्मली उस लाइक अनाउंस कर दिया भाई कि जो भी इंप्रूवमेंट होना था अभी तक मेरे को दिखा नहीं है, वी आर नॉट सीइंग एनी विजिबल इंप्रूवमेंट्स, सो if those improvements are not there in the next 3 months, this may lead to further action as in हम उस extent तक जा सकते हैं where you actually like getting dismissed, right? So you have 3 months time, आप अपना expectation, जो उनकी expectations है उनकी meet करो अपने performance से, otherwise the repercussions will be bad, right? So this is the overall context कि Mr. बरुआ अभी उसकी लगी पड़ी हुई है, ठीक है, right? This is the overall context. Now इस पर्टिकुलर लाइक क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा, इनिशियली द ईमेल डिस्ट्रैक्टेड मिस्टर दीपांशु बट ही डिसाइडेड टू फोकस ऑन द जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस माइट बेस्ट एक्सप्लेन हिज डिसीजन टू डू सो। नाउ द सेकंड पार्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद ना आपको डिसाइड करना पड़ता है हु इज द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या चीज होती है? स्टेक होल्डर बेसिकली किसी भी डिसीजन से जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इंपैक्ट होते हैं, दोज आर द स्टेक होल्डर्स इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट? स्टेक होल्डर। तो यहां पे इफ आई आस्क यू, इफ यू थिंक वेरी लॉजिकली, यहां पे स्टेक होल्डर कौन हुआ? दीपांशु है करेंटली, बिकॉज ही इवन दो ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस ईमेल, ही डिसाइडेड टू फोकस ऑन द जॉब। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन करेगा कि वाई ही डिसाइडेड टू फोकस ऑन द जॉब, राइट? पर पहले वो काम कर लो यार, ईमेल तो हमने ना, काम करना मेरे को उस टाइम में जरूरी है। तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर है ना, वो कौन है? दीपांशु। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस, राइट? लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम। तो मिस्टर पटेल वुड सून बी ट्रांसफर्ड टू अनदर डिपार्टमेंट। नाउ एक एक करके सोचना स्टार्ट करते हैं। विल दैट स्टेटमेंट, विल दैट ऑप्शन एक्सप्लेन व्हाई दीपांशु डिसाइडेड टू फोकस ऑन द जॉब? ईमेल तो भाई ठीक है, निकालने वाले की बात हो रही है, बट हम तुरंत काम क्यों लाइक लग गए वापस से, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन, मिस्टर पटेल वुड सोन बी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट। अब ये तो अगेंस्ट हो जाएगा ना। मिस्टर पटेल जो HR डायरेक्टर है, उसको मैं अगर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूं, अगर वो ट्रांसफर होने वाला है, तो एक तरीके से अगर ऐसे सोचोगे तो हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, सॉल्व हो नहीं रही है, बिकॉज प्रोजेक्ट लीडर एंड कलीग्स खुश है, लाइक दे आर अनहैप्पी विद हिम। तो HR लाइक मिस्टर पटेल चला जाएगा, बट कोई दूसरा HR डायरेक्टर भी तो आ सकता है, तो उसके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने ना जाने से मेरे को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है सच, राइट? तो उसके दूसरे डिपार्टमेंट अगर वो जाने वाला है, तो मैं उससे काम क्यों करना स्टार्ट करूंगा? सो इजीली आपने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, राइट? सो देखो, अभी आप ना धीरे धीरे देखोगे, आप ऑप्शंस के बेस पे एक्चुअली डिसाइड कर पाओगे वेदर दिस क्वेश्चन इज डूएबल और नॉट। ये इजी में काउंट होगा, मीडियम में काउंट होगा, या फिर डिफिकल्ट में काउंट होगा। तो पहला ऑप्शन तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, लास्ट वीक मिस्टर दीपांशु हैज बीन असाइंड टू अ न्यू टीम इन द सेम प्रोजेक्ट, राइट? अभी उसकी टीम चेंज हो गई, अभी टीम चेंज हो गई है, प्रोजेक्ट उसका सेम है, तो आपको क्या लगता है उसकी वजह से वो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल नहीं, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, उसका टीम ही चेंज कर दिया गया है ना, पर्टिकुलर सेम प्रोजेक्ट में है। तो इसका मतलब लोग उससे खुश तो नहीं है, तो वो इम्प्रूवमेंट तो वैसे भी लेके आ नहीं रहा है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू लाइक रेक्टिफाई एनीथिंग। तो वो काम करना क्यों स्टार्ट कर देगा उसकी वजह से? अगेन दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड, दिस इज एब्सोल्युटली मेकिंग नो सेंस। 3 days back, Mr. Dipanshu has been assigned a new project similar to his final engineering project. तो उसको एक न्यू प्रोजेक्ट पे डाल दिया गया है, फाइनल इंज प्रोजेक्ट से सिमिलर है। अगेन दिस हैज नथिंग टू डू विद पर्टिकुलर सिनेरियो मेरा ये है कि उसका जो करंट काम है उससे लोग अनखुश है, वो इंप्रूवमेंट लेके नहीं आ रहा है, तो वाई वुड ही स्टार्ट डूइंग लाइक हिज जॉब? वाई डिड ही फोकस ऑन द जॉब? तो अगेन दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। His friend has been hospitalized for the last 3 months. This is literally out of context. इसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है. His friend has been hospitalized for the last 3 months. So he decided to focus on the job on that first hand without getting distracted by the email. Again, this makes no sense. If I look at the last option, failing to perform in the client meeting might further complicate things. नाउ ये क्लाइंट मीटिंग वाला पार्ट सबसे पहली लाइन में याद करो दिया था, मिस्टर दीपांशु बरुआ, अ यंग IT प्रोफेशनल, केम अर्ली टू ऑफिस टू असिस्ट हिज बॉस इन द प्रिपरेशन फॉर एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन। तो उसका दिन स्टार्ट कैसे होने वाला था? उसी क्लाइंट मीटिंग से होने, द फर्स्ट थिंग ही हैड। उसके बाद उसको क्या आया? वो पूरा ईमेल आया। वो ईमेल क्या बोल रहा है कि भाई तेरा काम ना सही सा नहीं है, people are unhappy with you, your performance, your behavior is not up to the mark, you have to like go about improving। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी? आपके काम को ही तो बोल रहे हैं ना, आपके काम को बोल रहे हैं, आपके बिहेवियर को बोल रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस, यार
currently मेरे पास एक काम है ना, I have to assist my boss in the client presentation. So the first and foremost reason why you would decide to focus on the job in that particular moment without getting distracted by the email is like you don't want to complicate things. Like failing to perform in the client meeting might further complicate things, right? तो वेरी सिंपल हम बोल सकते हैं आपका फिफ्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज यही एग्जैक्टली बता रहा है कि भाई ये मेरे को जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को ही तो मेरा ये बोल रहा है कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं ईमेल में डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और मैं अपना काम छोड़ दूंगा तो और कॉम्प्लिकेट करेगा ना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन द फिफ्थ स्टेटमेंट, राइट? सो आई होप यू ऑल्सो लाइक एंडेड अप विद द फिफ्थ ऑप्शन, because बाकी ऑप्शन ना like I'm making absolutely no sense, they are nowhere close to this fifth option also, इसलिए हम फिफ्थ ऑप्शन पिक कर रहे हैं। राइट नाउ आई वुड कॉल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन easy because we were able to like easily eliminate all the options out of the 5 options, fifth was very easy. Now let's take one more look at it, like एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं इसी पर्टिकुलर सेट पे है, एंड दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, इससे हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। नाउ अब क्या हुआ, द स्केड्यूल प्रेजेंटेशन वेंट ऑफ स्मूथली, तो जो भी क्लाइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, द स्केड्यूल प्रेजेंटेशन वेंट ऑफ स्मूथली। Back in his cabin, Dipanshu read Mr. Patel's email once more and pondered over it, right? During the last meeting, he tried hard to put forward his explanation, but Mr. Patel had not allowed him to speak. Okay, तो वो explanation देना start किया था, like last meeting में, he like decided to explain it to Mr. Patel, but he didn't allow him to speak. तो वो सुन नहीं रहा है, ये important होने वाला है, ठीक है? He's not listening to him. Dipanshu was thinking of meeting Mr. Patel once again, but was doubtful that would help. Incidentally, he had a job offer. Now this becomes very important. Incidentally, he had a job offer from a startup with a comparable salary. तो उसके पास एक ऑफर है, एक स्टार्टअप से ऑफर है with a comparable salary. If Dipanshu was to join the new job, he had to accept the offer within the next 2 months, right? तो उसको अगले 2 months, 2 weeks में actually, next 2 weeks में actually join करना पड़ेगा. However, it makes things important. However, he cannot think of a life without a job. So Dipanshu was confused. Now, again, let's analyze the situation here. पीछे का ये जो कॉन्टेक्स्ट था, ये जो ईमेल है उसकी बातें तो है कि he has not been performing well, like people are unhappy with him, उसको टर्मिनेट करने की बातें हो रही हैं, तो he might lose his job, ये करंट कॉन्टेक्स्ट था। इसमें एडिशनल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हो गए कि क्या हुआ। पहली चीज़, इसने पहला पार्ट जो मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो ये है कि उसने मिस्टर पटेल से बात करने की ऑलरेडी कोशिश कर रखी है, बट दैट पर्सन इज नॉट अलाउइंग हिम टू स्पीक, एंड वो बोल रहा है कि अगर वो और भी बात करना चाहेगा, इज डाउटफुल दैट ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो मिस्टर पटेल से बात करने का कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट अब नहीं बनने वाला है। दिस इज द फर्स्ट clarity we are getting. The second most important like situation that is given in this particular case is he has a job offer. एक स्टार्टअप से जॉब ऑफर है विद अ कंपेरेबल सैलरी, तो उसको एक दूसरी जॉब का ऑप्शन मिल रहा है, राइट? करंट जॉब से उसको निकालने की बात हो रही है, एचआर को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा है और वहां पे उसको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। तो आप खुद से सोचोगे ना, तो आप ये सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ अलाइन होना स्टार्ट कर दोगे। आपके पास एक जॉब है विद अ कंपेरेबल सैलरी। अब इसमें लाइक जो फंडा है आगे क्या है, इफ Dipanshu was to join the new job, he had to accept the offer within the next 2 weeks. उसको जल्दी से ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? वो वेट नहीं करने वाले, उसको 2 हफ्ते में उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। द लास्ट पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउएवर ही कैन नॉट थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट अ जॉब। तो वो जॉब के बिना रह नहीं सकता, उसको जॉब की प्रायोरिटी है, वो जॉब चाहता है। Dipanshu was confused. Now let's help Dipanshu in this context. Which of the following options would be the best move for Dipanshu? तो हमें Dipanshu की हेल्प करनी है, तो हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है। सो Dipanshu इज अगेन द मेजर स्टेक होल्डर, उसके अलावा और कोई स्टेक होल्डर नहीं है, ठीक है? अभी तक हम बार बार जितने भी दोनों प्रॉब्लम देखे उसमें स्टेक होल्डर एक ही पर्सन है, Dipanshu. लेट्स हेल्प Dipanshu. First, talk to Mr. Patel and highlight the initiatives he has taken, but at the same time start applying for other jobs. थिंक वेरी क्लियरली। अगर आपने, मैं क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, आपको ना पूरा कॉन्टेक्स्ट थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ भी पार्ट मिस करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि आई फोकस्ड ऑन दैट पार्ट, मिस्टर पटेल इज नॉट अलाउइंग हिम टू स्पीक एनी मोर,
एंड वो अगर उसे कोशिश करेगा भी, लाइक इफ ही वाज थिंकिंग ऑफ मीटिंग विद मिस्टर पटेल वंस अगेन बट ही इज डाउटफुल दैट वुड हेल्प, तो मिस्टर पटेल से बात करने का स्कोप ना बचा नहीं है. तो talk to Mr. Patel and highlight the initiatives he has taken, but at the same time start applying for other jobs. This is absolutely not going to help. So इसको तो मैं eliminate करना चाहूँगा. ठीक है? I hope you are seeing it clearly now. क्यों मैं इसको eliminate करूँगा? Second, reject the offer from the startup. Use the next 3 months to find a better job, but continue in the present job. अब यहाँ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है, रिजेक्ट कर दो कि आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है, जो राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बिकॉज करंट जॉब में उसको निकालने की बात हो रही है, उसमें पीपल आर नॉट रियली हैप्पी विद हिम. 3 मंथ्स का उसके पास टाइम है. व्हाट इफ 3 मंथ के बाद उसको निकाल दिया गया, तो ही माइट नॉट हैव द सेम ऑफर अगेन, राइट. उसके पास एक करंटली ऑफर है, आप उसको ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे तो अब आपके पास ऑफर आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो. फर्स्ट थिंग, यूज द नेक्स्ट 3 मंथ्स टू फाइंड अ बेटर जॉब बट कंटिन्यूइंग द प्रेजेंट जॉब. तो प्रॉब्लम वही है कि 3 मंथ्स में इंप्रूवमेंट हो गया तो ठीक है, बट पीपल आर नॉट रियली हैप्पी. अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आपको फिर 3 मंथ्स के बाद निकाल दिया जाएगा, वी डोंट नो ना कि मेरे पास 3 मंथ्स के बाद जॉब आएगी या फिर नहीं आएगा. सो इफ यू थिंक रैशनली, इफ यू थिंक लॉजिकली, तो आप रिजेक्ट तो नहीं करोगे उस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऑफर को. सो नाउ वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट दिस ऑप्शन 2. रिजाइन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज लाइक ब्रूटली रॉन्ग. रिजाइन कर दो, नहीं, रिजाइन कर दो तो उसके बाद क्या, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में ये नहीं बता रहे. देखो, रिजाइन कर सकते हैं, बट अगर ये रिजाइन के साथ ये लिखा होता है रिजाइन कर दो और स्टार्टअप का जॉब ऑफर, स्टार्टअप वाला जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लो, हाँ, दिस वुड हैव मेड सेंस. बट इसमें सिर्फ लिखा है रिजाइन कर दो. दिस इज वेरी वेग. सिर्फ रिजाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ही कैन नॉट थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट अ जॉब. दिस इज लाइक क्रूशल टू दिस पर्टिकुलर स्टेट. तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए. एक्सेप्ट नाउ, एक्सेप्ट द ऑफर. This is what we're looking for, something like accepting the offer. Accept the offer only if the startup gives a salary hike, else keep prospective. अच्छा, this looks like little okay. इसको अभी हम evaluate करेंगे with respect to the 5th option. Accept the offer with a request to give him a 10% salary hike. देखो, अभी दोनों केसेस में 4th and 5th options a little close, ठीक है. दोनों में आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो. 4th वाले में आप क्या बोल रहे हो, आप एक्सेप्ट तभी करोगे जब स्टार्टअप क्या देगा, आपको एक सैलरी हाइक देगा, एल्स आप प्रोस्पेक्टिंग करना कंटिन्यू करोगे. यू विल स्टार्ट लाइक यू कीप लुकिंग फॉर अदर जॉब्स एज कंपेयर टू द 5th ऑप्शन. 5th ऑप्शन में क्या है, वी आर एक्सेप्टिंग द ऑफर. अब है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट, विद अ रिक्वेस्ट टू गिव हिम अ 10% सैलरी हाइक. तो देखो, आउट ऑफ दिस 4th एंड 5th ऑप्शन, आप 4th में क्या बोल रहे हो ना कि अगर स्टार्टअप सैलरी हाइक देगा तभी हम ज्वाइन करेंगे. व्हाट इफ उसने सैलरी हाइक नहीं दिया तो? अगर सैलरी हाइक नहीं दिया तो बोल रहे हैं कि एल्स कीप प्रोस्पेक्टिंग, हम देखना स्टार्ट करेंगे. नाउ दिस इज लाइक नॉट द राइट लाइक कंडीशन, या जो भी आपका मूव होना चाहिए दीपांशु का. बिकॉज इस केस में क्या है, उसके पास एक करंटली जॉब ऑफर है. वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि तुम लाइक अगर सैलरी हाइक दोगे तो ही मैं क्या करूंगा, लाइक ज्वाइन करूंगा. व्हाट इफ दे डोंट गिव अ सैलरी हाइक, तो फिर तो उसका वो ऑफर चला जाएगा ना. उसके बाद अगेन ऑफर चला गया है, करंट जो सिचुएशन है उसकी जॉब वाली, उसमें पीपल आर नॉट हैप्पी, उसका परफॉर्मेंस लाइक खराब है, तो वहां पे 3 मंथ्स बाद निकाल दिया जाएगा, तो इज अगेन नॉट हैविंग अ जॉब. मेन वही पार्ट है, ही कैन नॉट थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट अ जॉब. बाद में जॉब मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी वो अपने को नहीं पता है, हम अजम्पशंस के बेस पे नहीं जाने वाले हैं. फ्यूचरिस्टिक इवेंट हमें नहीं पता, हमें इस पर्टिकुलर लाइक जितना भी कंडीशन दिया है उसमें से डिसाइड करना है, राइट. तो इसमें से अल्टीमेटली अपने को क्या समझ में आ रहा है कि हम एक पुश नहीं कर सकते, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑन दोज कंडीशन. बट व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज रिक्वेस्ट देम फॉर अ 10% सैलरी हाइक. अब रिक्वेस्ट टू गिव हिम अ 10% सैलरी हाइक का क्या मतलब होता है, अगर वो नहीं देंगे ना, देन इवन देन वी आर फाइन, बिकॉज पिछली जॉब लाइक खत्म, कोई दिक्कत नहीं, अभी नई जॉब है मेरे पास, उसमें कंपेरेबल सैलरी है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, जॉब है. सैलरी इंक्रीमेंट का मेरा कहीं पे प्रायोरिटी नहीं था, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे. मिल गया तो सही है, नहीं मिल गया तो कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है. तो आउट ऑफ 4th एंड 5th वी वर एबल टू एलिमिनेट दिस 4th ऑप्शन, बिकॉज हम अभी उस कंडीशन में नहीं है कि तुम सैलरी हाइक दोगे तभी हम ढूंढेंगे, नहीं तो हम प्रोस्पेक्ट करेंगे. ये तब होता जब वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता, द कंपनी वाज लाइक इन अ सिचुएशन, या दे वांटेड टू रिटेन हिम. ऐसा सिचुएशन नहीं है, एंड हेंस वी कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट द 5th ऑप्शन, राइट. सो लाइक वी आर डन विद द प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब आपको समझ में आया होगा ना, दिस डीएम सेक्शन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट.
डिफिकल्ट नहीं है यार, इसको ना आपको रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। अब ये रीडिंग कैसे होगी, ये बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर करेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप इसमें से 10 20 50 सेट कर लो, आप एक्सपेक्ट करो कि नहीं आप हमेशा सही करोगे, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट 1 मंथ हम इसी पे पूरा काम करने वाले हैं कंसिस्टेंटली, राइट। सो स्टे पुट। हम बहुत सारे वीडियोस आने लेके आएंगे इस प्रिपरेशन में। लेट मी नो आपको डिसीजन मेकिंग के सेक्शन में अभी तक अगर आपने स्टार्ट करा है तो क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, लाइक आई एक्सप्लेन टू यू इन द कमेंट्स। जो भी आप कुछ भी पूछना चाहते हो रिस्पेक्ट टू एनी सेक्शन, ये दो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन है, यू हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एनी ऑफ द ऑप्शंस कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी हो सकता था, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ना आप जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, अगर आप लाइक ग्रुप स्टडी भी कर रहे हो ना, तो आप हमेशा 2 3 लोग साथ में डीम का सेक्शन करो, बिकॉज अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। मे बी आप बायस्ड हो जाओगे किसी, लाइक योर जजमेंट्स वुड गेट क्लाउडेड ओवर टाइम, नहीं नहीं ऐसा होगा, क्योंकि आप एक तरीके से सोच रहे हो, मे बी आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट ओवरलिप कर रहे हो। तो इसमें ग्रुप स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है फिर आपकी, right? So I hope you understood everything which I explained in this particular video, right? Also the last part I would say is where cat जैसा भी हो गया है, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, इन बोथ दीज केसेस जैट पे थोड़ा सा फोकस करना। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई हैव सीन पीपल डूइंग वंडर्स इन जैट आफ्टर अ फेल्ड कैट। People went on from 70 80 percentile to getting a 99.91 percentiles, 99.82 percentile in SAT. So this paper has always been a paper of redemptions। कैट में जो चीज़ नहीं हो पाती है वो हम सैट में कर ले जाते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप पढ़ो, बिकॉज दिसंबर का महीना है, ठंड बहुत होती है, यू ऑलवेज हैव दैट टेंडेंसी टू गो बैक टू द रजाई, एंड मौसम अच्छा है सो जाओ। मैक्सिमम लोग इस टाइम पे एफर्ट नहीं लगा रहे होते हैं, राइट? तो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ द क्राउड, थोड़ा एफर्ट डालो, बिकॉज अगर आप इस पर्टिकुलर 1 मंथ में जैट के लिए एफर्ट डाल दोगे तो कैट में कैसा भी कुछ भी अगर आपका ख़राब हुआ है, कैसा भी हुआ है, राइट, तो वो सारी चीज़ें ना वॉश अवे हो जाएंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ about the college you are getting into, not the exam through which you are getting into. Please remember that। थोड़ा फोकस करो, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो। विल बी इन विद यू टिल दैट, हम पूरा जैट तक इसमें एफर्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड कुछ भी आपको डाउट्स है, इफ हैव एनीथिंग यू कैन जस्ट टेल अस। थैंक यू।